जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं पंजाब तो बोल रही हाँ, बठिंडा तो। गुरु जी ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਪਰ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, 12 ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਜ਼ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੋਜ਼ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੋਜ਼ ਪੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਜ਼ ਪੈਨ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੱਠੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਾਰੂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਪਾਈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰੂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਦਾਰੂ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ 2nd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ 2nd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ 2nd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2nd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਕੱਢੋ ਦਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਰੂਮ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੇ ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੌਂਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਰੂਮ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਰੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਰੂ ਕੱਢਣ,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਗਈ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦਾਰੂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरु जी की श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम बोल रही हूँ। गुरुपा मैं आपको सामने ये सत्संग में आज 21 अगस्त है, मैं कल की एक सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा अभी मैंने एक सत्संग मैंने रिकॉर्ड की थी, तो मैंने टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा था, तो वो सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो अभी सेंड नहीं हो पा रहा है। तो मैं फिर से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। तो उसमें तो मैंने बहुत सारे अपने दिल की भावनाएं बोल दी थी, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ, शायद गुरुपा की मर्जी नहीं है। अभी मैं फिर से कल का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काल आपकी बेटी के परिवार को न जाने कौन से संकट से बचाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। अभी मैं सिर्फ 2 ही शुक्राना में बोलूँगी, क्योंकि इससे पहले सत्संग में मैंने सब बोल दिया था कल के, तो वो बहुत बड़ा हो गया, 26 मिनट का हो गया, जो शेयर नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार सेंड कर रही हूँ, शेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कल की 2 ही बात बोलूँगी। तो कल क्या हुआ, मेरे बेटा मोबाइल से शाम ट्यूशन से आने के बाद से मोबाइल में वो गेम खेल रहा था, देख रहा था। तो मैंने कितने बार उसको बोला कि बेटा मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, तो वो रख नहीं रहा था। तो मैं उसको बार बार बोल रही थी मोबाइल, इससे पहले उसने ख़राब कर दिया था मोबाइल कई दिन पहले। तो मैंने उससे बोला तुम मोबाइल रख दो, मोबाइल ख़राब हो जाएगा, इतना गेम नहीं खेलो, ऐसे तो गेम खेलना ठीक भी नहीं है और मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा, रख दो। नहीं रख रहा था। तो फिर ऐसा किया, हमें किचन में खाना परोस रही थी उन लोग बच्चों को देने के लिए। मेरे पति अंकल घर में नहीं है, तो बच्चे को मैं खाना देने के लिए किचन में गई। तो थोड़ा देर बाद मेरा बच्चा जाके मुझे किचन में बोलता है कि मम्मी देखो मोबाइल को क्या हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, तो देखा मैंने मोबाइल का स्क्रीन बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो गया, उसमें ऐसे स्ट्रेक हो गया, कुछ नहीं, ना ऑफ होता है ना ऑन होता है। तो फिर मैंने ला के उसको चार्ज में दिया, वो चार्ज तक नहीं होता है। तो मुझे तो बहुत डर लगा। मैंने बोला क्या किया तुमने मोबाइल, तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूट्यूब देख रहा था तो खुद से ही मोबाइल ऐसा हो गया। बोले आज पापा भी तुम्हारे घर में नहीं है,
और आस पड़ोस में भी वैसा लोग नहीं है, तो तुम अगर इस तरह से मोबाइल को, मैंने कितने टाइम से बोला तुम मोबाइल रख दो, मोबाइल ख़राब ऐसे भी पहले तुमने ख़राब किया है, ज़्यादा गेम खेलने से वो ख़राब हो जाएगा, तुमने नहीं रखा, अभी क्या हुआ देखो तो मोबाइल ख़राब हो गया, अभी रात को अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे किसी को कॉल करूँगी। तो मुझे बहुत मतलब टेंशन हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी और मैं गुरु पाक को अरदास कर रही थी, गुरु पा ये रात को पति अंकल भी घर में नहीं है, मैं दोनों बच्चों को लेकर अकेले हूँ, आसपास भी मेरा वैसा कोई लोग नहीं है, मैं किसी को बुलाने के लिए तो फ़ोन की ज़रूरत है, फ़ोन ही मेरा ख़राब हो गया है, मैं गुरु पाक कैसे रात काटूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो मैं इसे मन ही मन गुरु पास को अरदास कर रही थी और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया। तो मेरा बेटा बोलता है कि माँ मोबाइल ठीक हो गया। मैंने कैसे ठीक हो गया? बोले मैंने चार्ज में लगाया तो मोबाइल अभी ठीक हो गया। तो उसने आके मुझे ऑन करके दिखाया तो मैंने देखा मोबाइल ठीक हो गया। तो मैं तब मैंने गुरु पाक को शुक्राना किया, गुरु पाक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने इस बेटी की अरदास सुन ली और साथ ही में आपने मोबाइल को ठीक कर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पाक, लख बड़ा शुक्राना। इसके बाद क्या हुआ, तो बच्चे खाना खाए, मैंने भी लिया खाना, तो मैं खा नहीं पाई, कुछ दिनों से मैं खाना ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, मुझे गैस हो रहा है, पेट की कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, बच्चा दोनों खाना वाना खा के, मेरा बेटा खा के हाथ धो के आके वो बिस्तर पे उठ गया। तो मैंने उससे बोला तुम टॉयलेट करके आओ, तो नहीं, वो मजाक कर रहा है, नहीं जाएंगे, वैसे बदमाशी करे, उसको ऐसे भी ऐसे बिस्तर पे उठने से उसको बदमाशी करने का आदत ही है। तो मैंने अचानक से मुझसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पहले भी मोबाइल को लेके एक सीन क्रिएट कर चुका था। गुस्सा आ गया, मैंने उसे मार दिया और जो मैंने उसको मारा तो उसको आँख में लगा, तो चिल्ला के उठा। तो मुझे इतना डर लगा गुरुपा, गुरुपा ये मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा गलती कर दिया। मैंने उसको लेके फटाफट से बेसिन में लेके उसको आँख धुलाया, फिर मैंने जल प्रसाद और चंदन तिलक इस सब मिला के रखती हूँ, मैं उसको आँख में दिया। बोले बेटा कमा, मैं मंत्र जाप कर रही थी मनी मन, गुरुपा ठीक कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। उसके आगे दिन भी मैंने बेटे को थोड़ा वो बदमाशी करा था, मैंने मार लगा दिया। पता नहीं मुझ में क्या नेगेटिविटी हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कई दिनों से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने गुस्से पर। गुरुपा मुझे इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुझे ताकत दीजिए गुरुपा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। बहुत कंट्रोल किया था इससे पहले, आपने बहुत मुझे संभाल लिया था, मेरे कमा था गुस्सा, लेकिन अभी बीच में से कभी कितने दिनों से हो रहा है गुरुपा, पता नहीं किस लिए, ये नेगेटिविटी के कारण, या फिर आप बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअसली वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इसी के कारण, मुझे पता नहीं गुरुपा। प्लीज़ मुझे गुस्सा कंट्रोल करने की ताकत दीजिए गुरुपा। मैं 2 दिन कंटिन्यू बेटे पर हाथ उठा दिया, मुझे इतना डर लगा गुरुपा कुछ ना हो जाए, आँख में लगा है उसको, क्योंकि दिन से मैं सारा दिन कल तेरे बेटे यही आ रहा था कि तेरे बेटे पर संकट है, तेरे बेटे पर संकट है, भारी संकट है। मुझे इतना डर लगा गुरुपा, ये आप मुझसे क्या करवा दिया गुरुपा। मैं माँ होके उस पर हाथ उठा दिया, मुझसे ही इतनी बड़ी गलती हो गया। मैंने बहुत अरदास लगा, तो जब जाके बेटा थोड़ा शांत हुआ, मैंने उनको अच्छे से बहुत सारे बातें, मेरे बचपन की बातें, कुछ अच्छे से बातें बोला उनको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो फिर ठीक हुआ, गुरु मंत्र जाप करके फिर भी बहुत टाइम उसको दर्द हुआ, कम से कम 1:30 बजे जाके वो सोया, 1 से 1:30 बजे जाके सोया बच्चा। तो सुबह जब मैं उठी, मैं किचन में, तो दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मैं किचन में जब गई बेसिन में हाथ धोने के लिए, तो उसमें बाउल में एक ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई थी। तभी मुझे लगा कि कल कुछ संकट था जो गुरुपा ने ऐसे काट दिया, और वो बटरफ्लाई के ऊपर से वो गया। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा संकट था, आपने अपनी बेटी की परिवार की रक्षा की। कल शाम को एक कुत्ता भी मेरे गेट के सामने रो रहा था, मुझे कल शाम से ही बेचैनी हो रहा था। गुरुपा कृपा की आपने, इसी तरह आपकी कृपा हर बेटी पर, मेरे परिवार पर, आपकी हर बेटियों पर बरसाते रहिएगा गुरुपा। इसके आगे जो मैंने 10 मिनट पहले सत्संग रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने सब बोला, लेकिन अभी मैं इतने में ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, नहीं तो फिर से बड़ा हो जाएगा तो वो शेयर नहीं होता है। तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। और कल शाम को मैं जब संध्या बाती भी कर रही थी, तब मैं जब
फ्रेश होके आई तो मेरे पैर पे कुछ लगा, ऐसा लगा तो मैंने उसको देखा तो वो एक मक्खी जैसा था जो मेरे पैर पे, पता नहीं वो पहले ही मरा था या मेरे पैर पे लग के मरा। मुझे बहुत दुख हुआ गुरुपा, पता नहीं कौन सी संकट था, इससे पहले भी मेरे पैर पर एक मक्खी लग गया, इससे मर गया, कल भी हुआ मुझे, इससे बहुत बहुत दर्द हुआ गुरुपा मुझसे। ये मुझे लगता है कि मैंने क्या पाप कर दिया, मेरे पैरों तले आके वो चला गया, उसका जान चला गया गुरुपा। इस तरह की सिचुएशन से अपनी बेटी को बचाइए, मुझसे ये सब मत कराइए, मुझे बहुत दुख होता है गुरुपा कि जाने कौन सा संकट था हमारे परिवार के ऊपर जो एक मक्खी और एक बटरफ्लाई के ऊपर से चला गया गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना मेरे पति अंकल, मेरे बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप ही अपनी बेटी के परिवार का इस तरह से रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। इतने बड़े बड़े मारण क्रिया, इतने बड़े बड़े तंत्र क्रिया से आप अपने बेटी के परिवार को बचा रहे हैं, इसके लिए आपको शुक्राना, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। दिलो अंतर आत्मा से शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी, मेरे माता पिता, मेरा सर्वत्र जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और मैं यहाँ पर अपनी गुरु मंत्र जाप करके सत्संग को मैं विराम देती हूँ, और बाकी की जो मैंने आगे के सत्संग में मैं अभी रिकॉर्ड की थी वो मैं दूसरा सत्संग में मैं बोलूँगी। अभी के लिए यहाँ पर मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरु जी की श्री चरणों में मेरे कोटि 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 प्रणाम। आज मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा कई दिन से मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे, मैं कर नहीं पा रही थी। लगभग एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। गुरुजी ने मुझे डांट भी लगाया कई दिन, फिर भी मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी गुरुपा, आपको पता है। आप इसके लिए आपकी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि 3 दिन मुझ पे भारी है। इससे एक हफ्ता पहले मुझे गुरुपा ने ये सत्संग सुनाया था कि 3 दिन मुझ पे भारी है। और सच में संगत जी, जिस दिन मैंने वो टेलीपैथी पढ़ा और वो सत्संग मैंने सुना, नेक्स्ट दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब मैं क्या कहूँ। मैं रात को मुझे पहले जैसे पैनिक अटैक हुआ, मैं किसी तरह अपना रात में काटी, गुरुपा का मंत्र जाप करके जल प्रसाद अपने माथे पर, आँखों पर लगाया, पिया और मंत्र जाप किया, तब जाके मुझे धीरे 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 चैन आया। फिर मैं थोड़ा सो पाई, सुबह को थोड़ा सो पाई। फिर उठ गई क्योंकि बच्चों के स्कूल भी अभी शुरू हो गए हैं तो अभी जल्दी उठना पड़ता है। तो गुरुपा ने उस तरह मुझे रक्षा किया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा कई दिन से मुझे टेलीपैथी कर रहे थे कि मुझ पे भारी मारण क्रिया हो रहे हैं, रोज़ लगातार मुझ पर मारण क्रिया कर रहे हैं। संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सर्दी हुई है तो क्षमा कीजिएगा। फिर वो जिस दिन मैंने वो टेलीपैथी 2-3 दिन मैंने वो सत्संग, ऐसे ही सत्संग आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, तो मैंने वो सारे सुने। तो उस दिन जब मेरे साथ रात को ऐसा हुआ तो मुझे बिल्कुल महसूस हो गया कि सच में मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आत्मा को ही किसी ने निकाल लिया है। बहुत 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 मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत डर लगा, बहुत बिल्कुल पहले जैसा सिचुएशन आ गया था। मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा मुझे फिर वही सिचुएशन में मत डालिएगा गुरुपा। बहुत कष्ट करके मैं उस सिचुएशन से निकली हूँ। कई साल में, लगभग 2019 से मैं इन सिचुएशन में फंसी थी गुरुपा। अब जाके आपने अपनी बेटी को इतना मतलब
इस विपदा से बाहर निकाला है गुरुपा, मुझसे और वो उन सिचुएशन में मत लाइएगा। मैंने बहुत अरदास की गुरुपा से, बहुत अरदास की और मन ही मन मंत्र जाप की, तब जाके बहुत वक्त लगा, 1-2 घंटा लगा। मुझे बिल्कुल महसूस हो गया कि ये लोग बहुत कुछ गलत काम कर रहे थे, बहुत ही गलत कर रहे थे। तब जाके जब मुझे अच्छा लगा तो फिर नींद आया, तो सुबह फिर उठ गई। तो नेक्स्ट दिन भी शरीर बहुत ख़राब लग रहा था, सर चकरा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खा के गिर पड़ूँ, अभी चक्कर खा के गिर पड़ूँ। कोई लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और फिर पति अंकल भी नहीं रहते हैं। तो मैं किसी तरह गुरुपा को मन ही मन बोल रहे थे, गुरुपा मुझे ताकत दीजिए, मैं सारा काम ठीक से कर पाऊँ गुरुपा। तो मैं कर पाई। तो शाम को फिर मुझे फिर जैसे आगे दिन जैसे सर भारी, सर चकराना, मुझे कई दिन से हो रहा है ऐसा, सर चकराता है, मुझे आँख बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहे हैं बहुत। गुरुपा मुझे आँखों की भी टेलीपैथी बहुत सुना रहे हैं। तो फिर उस दिन मैंने भी शाम को मैंने गुरुपा से अरदास की संध्या बाती के समय, गुरुपा आज मुझे कल जैसा रात मत ना, कल रात जैसा हुआ ऐसा ना हो गुरुपा। मुझे बहुत इन सिचुएशन से मैं बहुत कष्ट से बाहर आपने मुझे निकाला है, फिर से वही दिन मुझे मत ला के दीजिएगा गुरुपा। बहुत अरदास की मैंने गुरुपा के श्री चरणों में। तो गुरुपा की कृपा से मुझे नेक्स्ट दिन वैसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ सर चकराना, मेरे आँखें जैसे आँखें बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखना, इस मुझे उस दिन से बहुत हो रहे हैं। और फिर मैं जल प्रसाद, गुरुपा का जल प्रसाद आँखों में देती हूँ, पीती हूँ, सर में भी देती हूँ, इसी तरह से मैं फिर ठीक हो जाती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे पहले ही जानकारी दे दी थी कि वो लोग मेरे ऊपर बहुत भारी मारण क्रिया कर रहे हैं और इसीलिए इसी वजह से मुझे ये कष्ट जो आए, तो भी वो आपने तो 90% आपने आपके ऊपर ही ले लिया, मैंने तो 10% ही भोगे। वो भी बहुत कष्टदायक था गुरुपा, बहुत कष्टदायक था। मेरा मन बहुत विचलित हो गया था गुरुपा। इसके लिए आपको शुक्राना 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 शुक्राना। हमारे कर्म इतने हैं कि आप इन्हें काट रहे हैं फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे गुरुपा। इसके लिए आपकी श्री चरणों में मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। कई दिनों से बहुत नेगेटिविटी फील हो रहे हैं। आपने मुझे ये सत्संग भी सुनाया है कि मेरे पास ही कि कोई है ऐसा पड़ोसी जो मेरे और मेरे पति अंकल के बीच जो मतलब झगड़ा लगाने के लिए ऐसा ब्लैक मैजिक करते हैं। कुछ ऐसे मेरे घर के सामने ही किसी ऐसा पुल के साइड में ऐसा कोई मौलवी है जिससे वो सामान लाके मेरे घर में, शायद घर में तो वो आंटी जी आते नहीं हैं लेकिन बाहर के ही रखे होंगे। तो गुरुपा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ आपने जो बोला कि पुल के पास, हाँ मेरे घर के सामने ही इधर एक थोड़ा ऐसा पुल जैसा है, उसके साइड में एक मस्जिद है, वहाँ पर मौलवी रहते हैं और वो मौलवी भी मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत जानते हैं। तो पता नहीं उनसे लाकर कुछ डाला होगा कि नहीं। तो गुरुपा आप उसको नष्ट कर दीजिए, भस्म कर दीजिए गुरुपा। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये पड़ोसी है इससे मुझे लेना देना कुछ भी नहीं है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरे संसार में आग लगाने के लिए इसको क्या पड़ा है। इसका किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ना तो कोई हमसे आना जाना है, ना कोई वैसा हम लोगों के बीच कोई रिलेशन है। वैसे ही मैं देखती हूँ रास्ते में तो हंसती हूँ, आंटी जी वो भी हंसते हैं, पूछते हैं कैसे हो। मैं बचपन से जानती हूँ, हम लोग ये बचपन से ही है, इसी कॉलोनी में मेरी भी जन्म हुआ है, वो लोग भी इसी कॉलोनी में ही है कि वो अंकल जी मेरे पापा सेम डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो हम लोग बचपन से उन लोगों को जानते हैं, तो बचपन से ही बात करते हैं। तो वही मुझसे पूछते हैं क्या कर रही है, खाना बनाई, खाई, ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी जवाब देती हूँ नहीं हुआ कुछ, जो पूछते उसका जवाब अच्छे से देती हूँ। मैं ज़्यादा उनके साथ में मतलब बात नहीं बढ़ाती हूँ, जितना बोलते हैं उतना में मैं जवाब दे के साइड हो जाती हूँ। मुझे क्योंकि आपने पहले ही मुझे सपने में उनका चेहरा दिखा दिया है कि जो पड़ोसन है, जो मेरे बुरा चाहते हैं, आपने उन्हीं का चेहरा मुझे दिखाया था। तो मुझे पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ,
उनके साथ हम लोगों का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन लोगों को क्या मज़ा आता है किसी की पति पत्नी के बीच झगड़ा लगा कर? किसी को क्या 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 मिल जाता है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। गुरुपा आप ही इन सबको लाइन में ला सकते हैं। गुरुपा वो आज मेरे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे, फिर और किसी के साथ करेंगे। ऐसे इंसानों को गुरुपा मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती और मैं इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन आप देखिए गुरुपा ऐसे पड़ोसियों को जो और भी बहुत संगत होंगे जिनको इस तरह के बेवजह कोई उनके पड़ोसी इस तरह के उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे उनके लाइफ में। गुरुपा इन लोगों को आप देखिए, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जाती भी नहीं हूँ, वो भी आती भी नहीं। बस रास्ते में वो अपने घर से निकलते हैं, मैं अपने घर से निकलती हूँ, देखा होते हैं तो बस क्या हाल चाल वही उसी के बीच क्या उनको मतलब इस सब करके उनको अच्छा लग रहा है किसी की पति पत्नी। उनके खुद के बच्चे हैं जो शादी कर चुके हैं, 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 शादीशुदा है, नाती पोती है उनकी। तो फिर वो दूसरों के मैं आंटी मेरे माँ की उम्र के हैं, वो उनके बच्चे मुझसे भी बड़े हैं। तो वो मेरे पीछे ऐसे क्यों लगे हुए हैं भगवान ही जाने। गुरुपा आप ही जानते हैं गुरुपा आप इन सबको रोकिए, गुरुपा। हाँ गुरुपा मेरे पति अंकल के बारे में भी आप बोलते हैं कि उन पर भारी वशीकरण किया है, मेरे बच्चों पर भी वशीकरण किया है। और मुझे 2 दिन 3 दिन ये टेलीपैथी आए कि मेरे बच्चों के भाग्य चुराने की कोशिश की षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मेरे बच्चों के किस्मत को चुराने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। गुरुपा आप ही सोचिए, मेरे साथ तो मेरे शादी के बाद से जो हुआ तो मैं वो भूल गई, सब मैंने छोड़ दिया। मेरे बच्चों के जन्म के साथ ही उनके साथ कितने अन्याय हुए वो भी आपको पता है। अभी मेरे बच्चे कितने मुश्किलों से थोड़े उनको जैसे मैं थोड़ा संभल पाई, मेरे बच्चे भी संभल पाए हैं। अगर इस वक्त वो लोग ऐसे करेंगे मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। गुरुपा मेरी बेटी क्लास 10th में है, इस बार वो मैट्रिक देगी। गुरुपा आप कृपा कीजिए, उसका पढ़ाई बर्बाद मत कीजिए। वो छोटे में इतने अच्छे थे पढ़ाई में, आपको तो सब पता है गुरुपा। जब छोटे में थे वो फर्स्ट आते थे, हर चीज़ में अच्छे थे, नाच गाना सब चीज़ में। धीरे धीरे मेरे बच्चे की सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने, सब कुछ। उसको कुछ करने को मन ही नहीं करता। और डांस सीखने के लिए दिया, डांस नहीं कर, 1 दिन जाते हैं तो मन नहीं है। फिर उसको ड्राइंग में दिया, 2-1 दिन करते हैं, उसका मन नहीं है। किसी भी चीज़ में उसको भेजूँ, मैं खुद भेजती हूँ तो वो 2 दिन करके उसको मन नहीं है। पढ़ाई किसी तरह मतलब मैं और उसके पापा, मेरे पति अंकल, हम दोनों किसी तरह उसके पढ़ाई के पीछे लग के उसको ठेल के क्लास 10 तक लाए हैं। मतलब उसको पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं थे गुरुपा। वो बचपन से बहुत अच्छा था, सब कुछ में, देखने में भी, पढ़ाई में भी, सब कुछ में वो अच्छे थे। तो उसकी सब चीज़ें इतने दिन छीन के आए गुरुपा। अभी तो क्लास 10th में है, अभी ऐसा मत करने दीजिए गुरुपा। ये आपके श्री चरणों में मैं तो सत्संग सब बोलते हैं कि सत्संग ही होना चाहिए, शुक्राना ही होना चाहिए, अरदास नहीं होना चाहिए। तो मैं अरदास नहीं गुरुपा आपसे, मैं तो अरदास हर वक्त दिन रात आपके श्री चरणों में करती हूँ। लेकिन फिर भी आज मैं बोल रही हूँ गुरुपा, मेरी बच्ची की पढ़ाई, मेरी बच्ची की भविष्य, उसकी सेहत के साथ, उसकी मानसिक अवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं उसको रोक लगाइए गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं गुरुपा। छोटे बच्चों के साथ कोई इस तरह कैसा कर सकता है, अपने ही खून के साथ कोई इस तरह कैसे कर सकता है गुरुपा। ये तो कोई और नहीं है, वो मेरे अपने ही है, आपने दिखा दिया है वो मेरे अपने ही है। कैसे कर सकते हैं गुरुपा, कैसे कर सकते हैं। आप ही इन सबको रोक लगा सकते हैं गुरुपा, आप ही इन सबको रोक लगा सकते हैं गुरुपा। आपकी कृपा आपकी इस बेटी के ऊपर और बेटी के परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखेगा गुरुपा। ऐसे तो आपकी शुक्राना हर दिन हर पल, आपकी शुक्राना अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। हर मुसीबत से आप हमें निकाल रहे हैं। जब कोई भी मुसीबत आते हैं तो उससे आप कैसे ना कैसे निकाल ही देते हैं। पति अंकल ऐसे तो वो जब शराब नहीं पीते हैं उनका आपको पता ही है,
तब उनका नेचर बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल जैसे फैमिली के लिए एक हस्बैंड हो, एक फादर को जो करना चाहिए वो 100% करते हैं वो। लेकिन जब शराब पीते हैं तो उनका भाषा, मुख का भाषा, उनका बोलने का तरीका और उनका आचरण बहुत गलत हो जाता है गुरुपा। इसीलिए दुख होता है गुरुपा, इसीलिए दुख होता है। उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, वो तो बोल देते हैं लेकिन हम लोगों को तो दिल में बैठ जाता है। तो इसीलिए मतलब गुरुपा मैं जानती हूँ आए तो होगा, एक ना एक दिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, एक ना एक दिन मेरे पति अंकल शराब छोड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। लेकिन फिर भी मैं यही इसीलिए अरदास करती हूँ कि मेरी बच्ची इस बार क्लास 10th में है, उसकी पढ़ाई में इसके लिए भी थोड़ा हैम्पर पड़ रहे हैं गुरुपा। मतलब जब पति अंकल इस तरह का एक आचरण करते हैं, घर के परिवेश खराब होता है तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, उनकी शराब का लत जल्द से जल्द छुटवा दीजिए गुरुपा। मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। इसी तरह आपकी ब्लेसिंग आपके हर संगत पर बरसाइएगा गुरुपा। और जो भी आंटी जी, जो भी अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी ढेर सारा ब्लेसिंग उन पे भी बरसाइएगा गुरुपा। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो गुरुपा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जो मेरे मन में आ रहे हैं, जो आप मुझे बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ बोलने के लिए, मैं बोलती हूँ कुछ। मैं एक हफ्ता से सोच रही हूँ कि मैं सत्संग में ये बोलूँगी, मैं सब भूल गई। अब मैं सब भूल गई, बोलते वक्त सब भूल गई। अब मुझे मन में अभी जो आ रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ गुरुपा। इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। संगत आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिन मंगलवार है। मैं गुरुपा की कृपा से मैंने सारे काम करके हनुमान जी की मंदिर में जाके पूजा भी करके आई और आके ही मैंने पहले गुरुजी की शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।